Good morning guys. Today I am going to start 9.2 the wholesale trade. First chapter हमने discuss किया था internal trade. So this is the second chapter of this unit. It is called the wholesale trade. From the name wholesale trade. Wholesale trade is that kind of business. In this, the businessman purchased in large quantity from the producer. Means the shopkeeper here is called the wholesaler. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द होलसेल ट्रेड. सो होलसेलर नाम का शॉपकीपर जो मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन है, ही परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटी. ही परचेज इन a bulk amount from the manufacturer and he supply the same goods in small quantities to the retailers. So this is the wholesale trade. The person who is doing this process is called the wholesaler and this business is called the wholesale trade. So basically the wholesaler purchase from the businessman from the manufacturer in large quantity the goods and sell the small quantity of goods to the retailers. So as you can see the definition, a person or firm that buys merchandise and resell it either to retailers for subsequent resale to the consumer or to the business firm for industrial or business use is called the wholesaler. Next, we have the features. Firstly, the wholesaler buy goods in a large quantity. As I said, he purchase in bulk in large quantity from the manufacturer. He deals goods only some special goods. जो होलसेलर होता है वो आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड की गुड्स में ही डील करता है. आप लोगों ने मार्केट में होलसेल की शॉप्स देखी होंगी. लाइक मैं एग्जांपल लूँ, अगर इन राजगुरु मार्केट मद्रास हैंडलूम आप लोगों ने आई थिंक सभी ने सुना होगा. So he is the wholesaler who is providing different kinds of goods to the customer. So उसके पास variety of products हैं but they are dealing only in one product, that is about the handloom. So he sells goods to the retailers. He supplied the goods to the retailers. He usually purchase in cash and sells on credit. ये क्या करता है, कैश में खरीदता है बिजनेसमैन से और कई बार ये रिटेलर्स को आगे क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. He works as a link between the producers or the manufacturer and the retailer. He is a middleman between the producer and the retailer. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मद्रास हैंडलूम का, द कस्टमर दे ऑल्सो कैन कॉन्टेक्ट विद द होलसेलर डायरेक्टली, बट यूजुअली जो होलसेलर्स होते हैं वो आगे रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं और हम लोग रिटेलर से जाकर परचेज करते हैं. और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वी परचेज फ्रॉम द रिटेलर. वी कैन परचेज या वी कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द होलसेलर ऑल्सो, मीन्स द कस्टमर्स. Next we have, there are many agents or brokers with the wholesaler for selling goods. More capital, obviously if he purchase in large quantity, for that he need the huge amount of money. The wholesaler adopt modern means of advertisement. He stores his goods in a godown. जो wholesaler होता है वो अपने गोडाउन में, शॉप में सिर्फ सैम्पल की सेंस में प्रोडक्ट्स को रखता है, मेनली उसका प्रोडक्ट गोडाउन में होता है. The wholesaler spend very little on decoration. Only the sample of goods are to be kept in the shop. As I said कि वो सिर्फ कुछ चीज़ें ही शॉप में रखता है, rest are in the godowns. He purchase goods on advance payments in order. A wholesaler establish a balance between the demand and supply. The percentage of profit for a wholesaler is very little. The wholesaler helps to the producer and the retailers as in financial sense. अगर producer और retailer किसी को भी पैसे की requirement होती है तो wholesaler उनको वो facility provide करता है. Next we have services of wholesaler. Now what kind of services a wholesaler is provided to the retailer or to the manufacturer or to the society. So firstly I'll start with the services towards the producer or manufacturer. कि जो बिजनेसमैन है उसको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है होलसेलर. फर्स्टली ही प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड. ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको नहीं पता मार्केट में कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की. सो द होलसेलर इज़ द पर्सन हु प्रोवाइड्स द डिमांड या इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड टू द प्रोड्यूसर. तो जितनी मार्केट में डिमांड होगी उतनी ही प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर देता है प्रोड्यूसर को. एक्टिंग एज मिडल मैन, एज आई सेड this is the first link between the customer and the producer. So he is acting as a middleman between the producer and the customer, क्योंकि wholesaler producer से खरीद के आगे retailer को supply करता है, retailer आगे उसी product को customer को देते हैं. So he is acting as a middleman. Providing financial help. As I said, he provides financial help to the producers. कि कई बार producers को advance payment की requirement होती है wholesaler से, तो wholesaler advance में payment करके producers को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और कई बार वो उनको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. प्रोवाइड असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स. ही प्रोवाइड हिम असिस्टेंस कि हाउ यू हैव टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट.
अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए आपको किस तरह के एडवर्टीजमेंट टूल्स की ज़रूरत है, इस तरह की एडवाइस, इस तरह का असिस्टेंस जो प्रोड्यूसर्स को है होल सेलर कई टाइम पर प्रोवाइड करता है, सो दैट he will spend या he will earn good amount of profit by spending huge amount on the advertisement. Providing storage facility, the wholesaler produce from the manufacturer, so उसके मैक्सिमम अमाउंट को होलसेलर ने परचेज़ कर लिया, तो जो प्रोड्यूसर है उसको बड़े बड़े स्टोरेज रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कैप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द होलसेलर परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ही कैप्ट द गुड्स इन हिज ओन गोडाउन, सो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का स्टोरेज का लोड कम हो जाता है. प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, here he is the person, the wholesaler is the person who distribute the goods on the behalf of producer to the retailers. तो प्रोड्यूसर को डायरेक्ट गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है द होलसेलर इज़ द पर्सन हु विल डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द डिफरेंट रिटेलर्स इन डिफरेंट सिटीज़. Stabilizing prices, the wholesaler is a person who make a stabilization in the prices. You know, आपने इको में पढ़ा होगा किसी भी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन प्रोडक्ट की प्राइस का डिटर्मिनेशन उसकी डिमांड और सप्लाई से होता है. जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ प्राइस. सो जो होलसेलर है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन बनाकर रखता है, वो मार्केट में डिमांड को इस तरह से बनाकर रखता है कि ना तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ना ही उनकी प्राइसेस पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो. नेक्स्ट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी. सुना होगा आप लोगों ने, जितना ज़्यादा एक बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेगा उसकी पर यूनिट कॉस्ट उतनी ही कम आती है. सो ही विल गेट द स्केल ऑफ इकोनॉमी इन प्रोडक्शन बाय लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज सर्विसेज टुवर्ड्स द रिटेलर, कि what kind of services he is providing towards the retailer. The first is easy supply of goods. The wholesaler is the person who can easily supply the goods to the retailer. तो जो retailers होते हैं उनको small quantity में goods की requirement होती है, wholesaler उनको वो provide करते हैं. Financial help, sometime the wholesaler provide the credit facility to the retailers, कि आप credit में purchase करके चले जाइए, जब आपका sale हो जाएगा तब आप मुझे repay कर सकते हैं. Consultancy services, different kinds of consultancies, advisory kind of services is to be provided by the wholesaler to the retailer, because the wholesaler is having lots of experience, so he can give the advice to the retailer at any time, at any situation related to the advertisement, quality, quantity, price, etc. Reasonable prices, the wholesaler charge a reasonable rate from the retailer, because he is the middleman between the producer and the retailer, so he will charge reasonable prices from the retailer so that he can purchase the goods. बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, द होलसेलर, जो होलसेलर ने एडवर्टीजमेंट की है थ्रू द प्रोड्यूसर, उसका जो एडवांटेज है रिटेलर को डेफिनेटली कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज अगर एक प्रोड्यूसर एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके बारे में लोगों को या कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही अवेयरनेस होती है, सो उसको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती. इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट to the retailer, कि what kind of products a manufacturer is producing in future. कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करने अगर बिजनेसमैन जा रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को होती है, बिकॉज उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है प्रोड्यूसर के साथ. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो रिटेलर को देता है कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आप कस्टमर को उसके बारे में अवेयर करो, सो दैट वो उसको परचेज करना प्रेफर करे. सो द न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय हिम टू द रिटेलर. पैकिंग फैसिलिटी इज़ कि यू आर डिलीवरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू रिटेलर प्लेस, तो उस प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको ले जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए प्रॉपरली पैक किया जाता है प्रोडक्ट को डिफरेंट कंटेनर्स में, डिफरेंट बॉक्सेस में, सो दैट उसको कैरी करना ईजी हो. द लास्ट इज सर्विसेज टुवर्ड्स द सोसाइटी, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन. मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन मतलब प्राइसेस का बहुत ज़्यादा या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बना के रखता है होलसेलर. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एज पर द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ही इज़ द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग गुड्स टू द कस्टमर. तो कस्टमर के टेस्ट और फैशन के अकॉर्डिंग जैसे भी उनको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स की, होलसेलर उनको प्रोवाइड करता है. सिलेक्शन फैसिलिटी, just only because of the efforts of the wholesaler a customer have selection facility. उसके पास variety of options तभी आते हैं जब wholesaler producer से purchase करके लाता है. benefit of advertisement, as I said the wholesaler give the benefit to the customer because जो advertisement businessman ने producer ने की है उससे
कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप आज कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट, तभी आप उसको खरीदने जा रहे हो. रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स. इफ़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर, की उसकी क्वालिटी ख़राब है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो गई है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम अराइज हो गई है, तो होल सेलर उनको उनकी इन तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है. पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. जस्ट बिकॉज ऑफ द होल सेलर ही इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डिफरेंट रिटेलर्स और विद द कस्टमर्स ऑल्सो, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन राइज होती है, इंक्रीज होती है. If the production increase, obviously the cost of per unit product is getting low and the businessman will earn huge amount of profit. So large scale production can be possible only with the efforts of wholesaler. So this is about the wholesale trade. The retail trade we will discuss in the next video. I think this chapter is very easy because इसमें बहुत सारे ऐसे points हैं जो आपने पहले से भी सुने हैं. So read out the topic. Thank you so much.